Hello everyone. Environment lesson number 3 we are doing, right? We worked with one video for lesson number 3, so this will be my second video related to it. In our first video we discussed about Julan and Jampa, किस तरह से जम्पा को बिटर गॉड दैट इज करेला खाना पसंद नहीं था. देन झूलन को सब कुछ खाना पसंद था. झूलन को इमली बहुत पसंद थी. देन दे स्टार्टेड प्लेइंग वन गेम that to put food on in mouth of Julan, in mouth of Jampa, and Jampa have to recognize which food she is having in mouth, right? And that also by closing her eyes. Okay, so that we did in first video, and we discussed question answers of page number 23 and first two question on page number 24, right? So today let us continue work of this lesson, that is close your eyes and tell. This, if you can see here, close your eyes and tell, this is your to do your own self. This is actually one activity in which, like Julan and Jampa, you also have to play a game along with your any friend or with your brother or cousin, whosoever agree to play this game with you. To play this game you have to take so many eatable items, and then you have to put that item in your friend's mouth, and your friend will close his eyes, and then they have to recognize what kind of food you put it in her or his mouth. Okay, so how you tasted that, right? And when you put your food in mouth, then obviously you put it on tongue. तो टंग के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ओके, तो जब आप मुंह में खाना रखते हो तो कौन सा टंग का पार्ट क्या टेस्ट करवाता है, दैट वी हैव टू सी. लाइक एक टंग का पार्ट, लाइक आगे अगर स्वीट का पता चलता है तो साइड के टंग के इस साइड हमें सॉर का पता चलेगा, टंग के इस साइड हमें सॉल्ट का पता चलेगा. ओके, सो हमारी जो ये पूरी टंग है ना, वो डिवाइड की गई है अलग अलग टेस्ट के लिए. अंडरस्टूड? सो ऑल दिस एक्टिविटी इज रिलेटेड टू दैट ओनली. ओके, सो up till here you have written 6 number for question answers, right? Here you can write 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, not to write in notebook, nothing to write, you only do this activity. आंखें बंद कर कर क्या आपको पता चलता है कि आपने मुंह में क्या रखा. अंडरस्टूड? आप रखिए या आप अपने फ्रेंड के रखिए. व्हाट यू केप्ट इन माउथ दैट वी हैव टू गेस. अंडरस्टूड? क्या आपको पता चलेगा व्हाट यू एट, दैट थिंग वी हैव टू प्ले इन, दैट थिंग यू हैव टू प्ले इन गेम. ओके, then on page number 25 again we have 3 more questions. See, after 11 and 12 will come here, so this will be 13, 14 and 15. Okay, if I talk about 13 question, see here it is. If someone asks you to describe the taste of amla or cucumber, you might find it difficult to explain. How would you describe the taste of these? टोमेटो, ऑनियन, सौंफ, गार्लिक. सौंफ दैट इज वरियाली जिसको हम बोलते हैं इन गुजराती, राइट? तो ये सारी चीज़ों का टेस्ट आप कैसे बताओगे? से लाइक टोमेटो इज लिटिल बिट सॉर टाइप, थोड़ी खटास होती है टोमेटोज में, राइट? सेम फॉर ऑनियन ऑल्सो, थोड़ी खटास होती है. सौंफ वी कैन टेल थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिलता है माउथ में, राइट? एंड देन गार्लिक की स्मेल कैसी, हाउ यू विल. It is very difficult to give certain particular name for this kind of eatable things, right? कि वो किस तरह से टेस्ट होंगे. Okay, think of words that you know or make up your own words to describe the taste. आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं, आपको कैसा लगता है. If you feel tomato sweet है, you can write it sweet. That is your self study work to do. Understood? Then 14th one, that is when Jampa tastes some of the thing
शी सेड, हम करते हैं ना जब हम खाते हैं तो हमें अगर कुछ तीखा है तो हम लाइक वी डू लाइक दिस, राइट, क्योंकि हमें तीखा लगता है एंड इमीडिएटली वी हैव वाटर एंड ऑल, राइट. व्हाट डू यू थिंक शी मे हैव ईटन? उसने क्या खाया होगा? उसने कुछ स्पाइसी फूड खाया होगा, से लाइक ग्रीन चिली जैसा हो सकता है, जूलन ने जंपा के माउथ पे रख दिया हो, राइट. देन व्हाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट फ्रॉम योर एक्सप्रेशन एंड साउंड, आस्क योर फ्रेंड्स टू गेस व्हाट यू माइट हैव ईटन. सो आपने क्या खाया वो गेस करने के लिए अपने फ्रेंड को या अपने कलीग को, अपने पेरेंट्स को बोलिए आपके फेस एक्सप्रेशन से लाइक अगर आपको तीखा लगेगा तो ऑब्वियसली आप करने लगोगे, आपका फेस रेड होने लगेगा. क्यों? क्योंकि आपको स्पाइसी लगा. सो कई फूड आइटम्स के बारे में एक्सप्रेशन से भी पता चल जाता है कि हमने क्या खाया. अंडरस्टूड? वी आर नॉट गोइंग टू राइट ऑल दीज क्वेश्चन आंसर्स, ओके. दीज आर ओनली कॉमन क्वेश्चन आंसर्स. प्रैक्टिकली आप कैसा फील करते हो उसके बारे में ये क्वेश्चन आंसर्स हैं. अंडरस्टूड? क्वेश्चन आंसर्स जो नोटबुक में लिखने होंगे, आई विल मेक यू टू राइट इन नोटबुक, डोंट वरी अबाउट दैट. मीनवाइल, by the end of lesson, what work I give you, that is after I finished first lesson and second lesson, I gave you true or false, MCQs, fill in the blanks for all these two lessons. In the same way, after I finish this lesson explanation, I will give you these objectives only to write in your notebook. Okay, so don't just go on putting numbers in front of question as I say, but you don't have to write these questions in your notebook, please. Okay, now the next one is chew it or chew it well. What is difference? See, चबाकर खाओ और अच्छे से चबाओ, दोनों में क्या डिफरेंस है, that we have to see. See, chew it or chew it well. ओके, हमारे घर में काफ़ी टाइम हमारे पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि अच्छे से चबा कर खाना खाओ. सी, चबाने से क्या होता है? सी, व्हेन यू ईट फूड, वी हैव सो मेनी ड्राई फूड ऑल्सो. ओके, अगर हम रोटी की भी बात करें तो रोटी भी तो ड्राई ही होती है एकदम, लेकिन जैसे ही हम मुंह में डालते हैं वो सॉफ्ट होने लगती है और सॉफ्ट होकर वो लिक्विड तरह कन्वर्ट हो जाती है. देन वी स्वेलो इट इन आवर स्टमक. यस, उससे क्या होता है, जो हमारे मुंह का सलाइवा है, हमारा जो थूक है, वो फूड को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है. अंडरस्टूड? जस्ट इमेजिन अगर सलाइवा ना हो तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू टेक दैट हार्ड फूड इन आवर स्टमक. ओके, पेट तक लेकर जाने के लिए अगर हम हार्ड फूड खाएं और बिना सलाइवा के अगर हम खाएं तो वो खाया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो नर्व है, जो हमारा वो पाइपलाइन है, जो हमारा फूड मुंह से लेकर स्टमक तक लेकर जाएगा, वो हार्ड चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सॉफ्ट चीज़ें ही एक्सेप्ट करता है. तो सॉफ्ट चीज़, हार्ड चीज़ को सॉफ्ट में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स वन हैव टू च्यू द फूड. अंडरस्टूड? नाउ कई बार हम क्या करते हैं, मैनी टाइम व्हाट वी डू, यू नो, वी च्यू फूड इन हरी. हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं. अगर हमें कहीं जाना है, जल्दी जल्दी में खाना फिनिश करके हम निकले. ओके, तो उससे क्या होगा, वी आर नॉट च्यूइंग आवर फूड प्रॉपरली. और जब हम फूड प्रॉपरली च्यू नहीं करते तो वो जो फूड पीसेस हैं वो एज इट इज़ स्टमक में जाते हैं. अंडरस्टूड? अब जब वो पीसेस स्टमक में जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा स्टमक एक होगा, दैट इज़ हमारे स्टमक में पेन होगा. अंडरस्टूड? इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं कि अच्छे से और ज़्यादा चबा कर खाओ, क्योंकि अगर आप अच्छे से चबा कर खाओगे फूड को तो आपके जो फूड पीसेस आपके मुंह में रखे होंगे वो एकदम से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में, और वो फिर डाइजेशन में भी उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. अंडरस्टूड? अगर पीसेस होंगे हमारे स्टमक में, दैट इज़ इफ वी विल ईट इन हरी, इफ वी विल नॉट च्यू अवर फूड प्रॉपरली,
then it will take too much time to digest in our stomach. Understood? So कहीं ना कहीं सलाइवा जो है वो हमारे माउथ पे बहुत ही ज़्यादा परफेक्टली काम करता है और वी कैन टेल इट इज़ वेरी यूजफुल. ओके, दैट इज सलाइवा हेल्प्स अस फॉर डाइजेशन. माउथ में सलाइवा नहीं होगा तो फिर फूड अंदर जाकर डाइजेस्ट होने में बहुत प्रॉब्लम होगी. अंडरस्टूड? सो रिलेटेड टू दिस ओनली वी आर गोइंग टू रीड on page number 25. It is, see here, it is chew it or chew it well, what's difference? Try this together in the class. Each of you take a piece of bread or roti, some cooked rice. Okay, put it in your mouth, chew 3-4 times and swallow it. अगर आप 3-4 बार उनको चबाएंगे और swallow करेंगे तो ये सिचुएशन है. ओके, योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यू हैव रिटन हियर नंबर 15. सो योर 16th क्वेश्चन विल बी दिस, सेकेंड डॉट. व्हाट इज द क्वेश्चन? दैट इज, डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यूड इट? क्या टेस्ट चेंज होगा जब आप उसको च्यू करोगे? सी, 3-4 बार चबाने से और फिर जल्दी जल्दी अंदर करोगे, आपको अच्छे से टेस्ट का भी पता नहीं चलेगा. अंडरस्टूड? सो पुट हियर नंबर 16 ऑन सेकेंड डॉट. ओके, नाउ रीड द सेकेंड सिचुएशन. नाउ टेक अनदर पीस ऑफ सम राइस एंड च्यू इट 20 to 25 टाइम्स. 20 to 25 टाइम्स राइस को चबाकर खाइए. एंड योर 17th क्वेश्चन इज दिस फोर्थ डॉट. व्हाट इज द क्वेश्चन? Was there any change in the taste after chewing so many times? क्या कुछ चेंज आया टेस्ट में इतनी बार चबाने से? तो यस, टेस्ट आएगा, हमें भी टेस्ट आएगा और टेस्ट चेंज भी होगा. अंडरस्टूड? सो दिस विल बी योर 17th क्वेश्चन. ओके, नाउ डिस्कस. नाउ दिस इज योर 7. After 17 this will be 18 and 19. These two questions we are discussing now. Okay, 18th question and 19th question. Let us see what is on 18th one. Has anyone at home told you to eat slowly and to chew well so that the food digest properly? That is what I told कि हमारे घर में ज़्यादातर बोलते हैं फूड अच्छे से चबाकर खाना चाहिए क्योंकि वो डाइजेस्ट अच्छे से होता है. राइट? वाई डू यू थिंक दे से दिस? दिस इज वॉट आई एक्सप्लेन यू. क्योंकि जितना चबाकर खाओगे उतना वो सॉफ्ट होगा और जितना सॉफ्ट होगा उतना जल्दी डाइजेस्ट होने में अच्छा रहेगा. ओके, इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक ग्रीन गुआवा. What kind of changes takes place in it from the time you bite a piece and swallow and put it in your mouth, and when you swallow it, what does the saliva in our mouth do? As I said, see now green guava की बात करें तो वो मतलब बहुत ही हार्ड होगा खाने में, लेकिन हम अगर उसको कंटिन्यू च्यू करेंगे तो वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. एंड व्हेन वी विल स्वेलो इट टू आवर स्टमक इट विल डाइजेस्ट इजीली. तो प्रोसेस जो शुरू होता है वो माउथ से शुरू होता है. कौन सा प्रोसेस? डाइजेशन का प्रोसेस. अंडरस्टूड? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम माउथ इटसेल्फ, राइट फ्रॉम च्यूइंग योर फूड टिल गोइंग टू स्टमक. अंडरस्टूड? जितना अच्छे से चबाकर आप अपना फूड अंदर करोगे आपका फूड जल्दी डाइजेस्ट होगा और आपको स्टमक एक भी नहीं होगा. ओके एवरीवन, नाउ देन वी विल डिस्कस दिस फ्रॉम पेज नंबर 27 and 28 in our next video. Till this, go through all these questions only which is here written and just do discussion of answer either with your elder brother or sister or with your parents. Okay, only discussion, there is nothing to write. Okay, I will upload PDF for these pages also which I explained you in this video.
but nothing to write still. I will give you PDF what you have to write after we complete explaining the whole lesson. Okay everyone, take care.